Hello everyone, कैसे सबके सब? My name is Keshav Goel and I create content around pop culture, college life, JEE preparation and podcasts with people from different fields. So if you are interested in any of these topics, then consider subscribing to this channel. So let's start the video. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दिनों का आई गेस मोस्ट हॉट टॉपिक, दैट इज द बीफ बिटवीन कृष्णा एंड एमिवे बंटाई. सो लेट मी गिव यू सम कंटेक्स्ट. एमिवे बंटाई is currently number 1 independent rapper of India and Krishna is an amazing rapper who is signed under Raftaar's record label named Kalamkar. So everyone thinks that ये beef April 2022 में शुरू हुई जब एमिवे ने अपना गाना चुसम्बा ड्रॉप किया, बट नहीं. This beef was started 3 years back in June 2019. एमिवे dropped a song named Fever's Feast जहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला. I'm representing India, no one is doing it right now. After that, Krishna dropped a track named Fever's Feast Langar where he dissed Emiwe subliminally, but it was very obvious that the song was for Emiwe. उसके बाद Emiwe dropped a track named Seedha Takeover in which there were some subliminal shots for Krishna, but it was not up to the mark as compared to Krishna's song. After this, Krishna dropped first direct diss against Emiwe named Seedha Makeover, जिसमें उन्होंने Emiwe को बीफ के लिए इनवाइट किया. Come out to play. This was another brutal diss track for Emiwe by Krishna. After this, Emiwe didn't respond in any form. कृष्णा की तरफ से पोकिंग कंटिन्यू रही. उनके कुछ ट्रैक्स में Emiwe के ऊपर सब्लिमिनल शॉट्स लिए गए, बट Emiwe की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. Emiwe के रिकॉर्ड लेबर बंटाई रिकॉर्ड्स और कलमकार के बाकी रैपर्स के बीच में थोड़ी बहुत नोक जोक चलती रही, बैक एंड फोर्थ हुआ, बट कुछ मेजर नहीं हुआ. एंड देन सडनली ऑन 2nd of April 2022, Emiwe dropped the first direct diss track against Krishna and Raftaar, named Chusamba. In this track, the major concern of Emiwe was कि उनकी बीफ रफ्तार से थी तो बीच में कृष्णा क्यों आए. All the hip hop fans got shocked and after this diss track सबके बीच में hype बन गई. Then after 1.5 months, Krishna dropped a reply track named Lil Bunty. As always, Krishna's track was lyrically very strong. Main criticism against Emiwe's Chusamba was कि उसमें ज़्यादा bars, facts, metaphors वगैरह नहीं थे और सिर्फ गालियाँ थी. And as we all know Emiwe. But again, Emiwe shocked everyone and dropped a banger track named KR Loda Sign. And this track, according to me, is the best track of this whole beef. इस ट्रैक में Emiwe ने कलमकार और उनके आर्टिस्ट पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, लाइक दे यूज बॉट्स टू प्रमोट देयर सॉन्ग्स, रफ्तार बीट्स हिज वाइफ एंड मेनी मोर. सरप्राइजिंगली उसके कुछ टाइम बाद न्यूज़ में खबर आई कि रफ्तार डिवोर्स्ड विद हिज एक्स वाइफ. डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि वो जो एलिगेशन लगाया था वो सच है या झूठ है. आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज जो भी सारे इंसिडेंट्स हुए मैं उस चीज़ को कवर कर रहा हूँ. आफ्टर दिस पॉइंट द बीफ टर्न नास्टी. Krishna dropped a track named मचाएंगे 4 जिसमें he went a bit personal on Emiwe's girlfriend and also warned Emiwe to not go on his family, otherwise the matter would go outside the beef. And हम सब जानते ही हैं कि Emiwe तो चुप रहने वाले नहीं थे. उन्होंने 2-3 दिन बाद ही ट्रैक ड्रॉप किया named मचाएंगे 4 again. And इसमें he went full personal on Krishna's mom. उसके बाद comes the worst part of this beef. Emiwe shared a video जिसमें कलमकार के को-फाउंडर अंकित खन्ना लोगों को कहकर Emiwe को डिसरिस्पेक्ट करवा रहे थे और ट्विटर पे उनके अगेंस्ट हैशटैग्स रन करवा रहे थे. अकॉर्डिंग टू मी, दिस पॉलिटिक्स इज़ वेरी बैड एंड शेमफुल. उसके 1-2 दिन बाद Emiwe केम लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड आस्क्ड रफ्तार एंड कृष्णा टू ज्वाइन लाइव, बट दे डिडंट. इन दिस लाइव उन्होंने बोला कि उन्होंने इतना ब्रूटल और डिसरिस्पेक्टिंग ट्रैक इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि पहले कृष्णा ने उनकी जीएफ को डिसरिस्पेक्ट किया एंड आफ्टर दैट ही वेंट पर्सनल ऑन कृष्णा. उसके 1-2 दिन के बाद हम देखते हैं कि Emiwe अपना डिस ट्रैक मचाएंगे 4 यूट्यूब से हटा ही देते हैं और उसका रीज़न ये देते हैं कि बहुत ज़्यादा हेट स्प्रेड हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस डिस ट्रैक. एंड साइमल्टेनियसली एक गाना अनाउंस कर देते हैं नेम्ड थैंक्स टू माई हेटर्स. सबको लगता है कि बीफ खत्म हो गई, बट Emiwe had something else in his mind too.
एमिवेट 19 जुलाई की रात को 1-1:30 बजे मल्टीपल ट्वीट्स करते हैं जिसमें ही शेयर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रैपर्स इन इंडियन हिप हॉप सीन एंड अप्रिशिएट्स ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग कृष्णा एंड रफ्तार। एंड फाइनली दिस बीफ कम्स टू एन एंड। आपका सवाल ये होगा कि बीफ कौन जीता? भाई मैं बताने वाला नहीं होता हूँ कौन बीफ जीता, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये बीफ ना कोई हारा ना कोई जीता, बट डेफिनेटली एमिवे के ट्वीट्स और लास्ट सॉन्ग ने फैंस का दिल ज़रूर जीत लिया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इस चैनल को हमें बहुत आगे लेके जाना है। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।